Professor Dr. Karl A. Keller of the University of Lausanne and University of Neuchâtel, Switzerland, had said that Swami Omkaranand is a whole culture in himself, a culture which might be a real alternative to our own Western narrow world view. His statements are genuine utterings of a real guru whose God-giving mission is to bring to the people the light, the truth, the peace, and the joy which he himself is. If you want to know more about him, his lineage and his mission, then read the booklet, The Glimpse of Paramhansa Omkaranand Saraswati, His Lineage and His Mission. This is the second edition, which is going to be released today. And to do this honor, I would like to request Mr. Rajiv Malik, who belongs to the top rank of journalists. The world-famous Quays Hindu Monastery, Hawaii, USA, has given him the prestigious post of being the representative on all India level for the international magazine Hinduism Today, which is published worldwide. He was instrumental for the historic interview with Gurudev Paramhansa Swami Omkaranand Saraswati Ji, which he has taken the form of the publication, A Glimpse of Paramhansa Swami Omkaranand Saraswati, His Lineage and Mission. Now I request Mr. Rajiv Malik, Swami Vishweshwaranand Ji Maharaj, Kumari Soma Shekhri Ji, to kindly offer the booklet to Gurudev first, and then release the booklet. We are very grateful to Mr. Malik here that today he has released his book here and that he has come to us with his family here. He has done a marvelous job. Since then, Mr. Malik has become very, very close to our Omkarananda Ashram. He has come with the representative of this monastery. He has visited over here, several ashram here. They are very, very prominent and extraordinary in living style in each and everything. And Mr. Malik has given very nice speeches already 20 years before in Omkaranand Saraswati Nilayam. Beautifully, he is of very, very rare nature. Mr. Malik, thank you for your coming. गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरुरेवा परमो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. "20 years back, I came here as a journalist, but today I am a part of Omkarananda family. Shraddheya Vishweshwaranand Ji Maharaj, Gopalacharya Ji Maharaj, Chota Swami Ji. I can see so many faces here who in my journey in exploring this great institution set up by Paramahans Omkaranand Maharaj Ji. I can see Colonel Sachadeva, I can see Professor Ram Kumar, Madam Chakravarti is here. Hinduism Today asked me to do an article 20 years back on the mission and life and the educational projects of Omkarananda Institution. 20 years back when I came here, I saw how Swami Vishweshwaranand Ji Maharaj and his team, they were putting all their energy and they were struggling to
make and set up schools even in the remotest parts of the hilly areas. उस समय में जब ऊंचे पहाड़ों पे जाना भी बहुत मुश्किल था, स्वामी जी के आशीर्वाद और कृपा से मैं अपने परिवार के साथ इनके कम से कम 1 दर्जन स्कूलों में गया और वहां पे मैंने देखा कि जहां पे भारत सरकार भी शिक्षा नहीं पहुंचा पा रही थी, उन बच्चों को ओंकारानंद आश्रम उस समय शिक्षा मुहैया करा रहा था। और तब से लेके आज तक वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बड़े तरीके से और उससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से तो ओंकारानंद नीलायम जो स्कूल है, कितना बड़ा, हज़ारों बच्चे, और कितने ही स्कूल्स जो आपके हायर लेवल के जो मैंने इंस्टीट्यूशंस देखे जिनमें मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो शिक्षा की एक जो ज्योत स्वामी ओंकारानंद जी ने जलाई, उसको जैसा कि आदरणीय गोपालाचार्य जी ने कहा कि इतनी दूर ऑस्ट्रिया में और स्विट्जरलैंड में स्वामी जी जो वेदों का परचम लेके और सारी दुनिया में हिंदुइज्म का प्रचार करने निकले, तो उन्होंने अपनी शक्ति, वो तो शक्ति के पुंज निश्चित रूप से थे, और उन्होंने यहां पर उस समय ही स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज को अपनी शक्ति से जोड़ के और यहाँ पे निर्माण कार्य और यहाँ पे शिक्षा के प्रसार और प्रचार का जो एक जिस तरह से ये कार्य हुआ है, बड़ा अद्भुत है। ये अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि एक व्यक्ति यहां से हजारों मील दूर बैठा है और मुझे तब यहां आके और इनके इतने स्कूलों में जाके मुझे लगा कि जैसे वो हर जगह पे उनका अस्तित्व है, हर जगह पे उनकी पहचान है और हर जगह पे वो ऊर्जा जो उनकी है, वो ऊर्जा अवेलेबल थी। उनके असल में गोपालाचार्य जी महाराज ने जो कितने सुंदर भजनों से हम लोगों का जो हृदय जीता है, वो उस प्रेम की ऊर्जा से जीता है। और मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए जो अल्प ज्ञानी है, उसके लिए इतने बड़े महान संतों के बोलने के बाद अपने को प्रस्तुत करना भी बड़ा कठिन है। लेकिन चूंकि इतने भाव से आदरणीय गोपालाचार्य जी ने जो पंजाबी के कुछ भजनों द्वारा भी स्वामी ओंकारानंद जी की बात कही, उससे तो वाकई इन्होंने माहौल में एक बहुत एक भावनात्मक सा कर दिया। और मैं कुछ एक ऐसे माहौल में स्वामी ओंकारानंद जी का एक मैसेज मैं कुछ कवि की पंक्तियों से कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो उनका निचोड़ है वो इन पंक्तियों में आप देखिएगा कि आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए, आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ओंकारानंद जी महाराज की जो भावना है वो इन शब्दों में है। ये धर्म हमारे पास ऑलरेडी है, ये धर्म और कोई नहीं है, वो हमारा सनातन धर्म ही है, हिंदुइज्म ही है। कि आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल गुलशन में कोई ऐसा लगाया जाए। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आपका मुझसे कुछ ऐसा हो ए रिश्ता, सचदेवा साहब, आपका मुझसे
हो रिश्ता कुछ ऐसा कि मैं हूं भूखा तो फिर तुमसे भी ना खाया जाए। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ले चलें आज इस रिश्ते को हम उस ऊंचाई पे, ले चलें आज इस रिश्ते को हम उस ऊंचाई पे कि मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। सबसे बड़ी बात जो मैंने यहां आके देखी, आप जो लोग यहां सालों से, वर्षों से, दशकों से जुड़े होंगे उनको जरूर पता होगा, स्वामी जी एक पायलट हुआ करते थे। यानी कि स्विट्जरलैंड में एक पायलट अपना उस धन और ऐश्वर्य और अपना कैरियर छोड़ के स्वामी ओंकारानंद जी की शरण में आ जाता है और वो यहाँ आके एक ऐसी जगह पे, ऋषिकेश जैसी जगह पे जो तपोभूमि है, संतों की भूमि है, वहां आके कार्य करना शुरू कर देता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। और जब मैं यहां आया तो मैं भी और लोग भी उत्सुक थे जानने को कि एक स्वामी इतनी दूर बैठे हुए हैं, उनके शिष्य यहां पे प्रचार कर रहे हैं और वो वर्षों से नहीं आए। तो इस बात को लेके भी काफी लोगों में कौतूहल था। यहां तक कि स्वामी जी को काफी संघर्ष भी करने पड़ते थे। तो जब इनसे मैंने उस समय में मैंने भी इनसे ये बात कही कि स्वामी जी आप बाहर से आए हैं और वेदों का प्रचार, आप हमारी संस्कृति का प्रचार आप यहां कर रहे हैं। तो एक लेवल के बाद इन्होंने मुझे बोला कि राजीव, मैं अपनी चमड़ी का कलर तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी आत्मा तो हिंदुस्तान की है। ये इनके एग्जैक्ट शब्द थे कि जरूर पिछले जन्मों में मैं इसी भूमि पे पैदा हुआ, तभी तो उस महापुरुष ने मुझ में वो मेरी उस आत्मा को देखा, मेरे इस कलर को नहीं देखा और मुझे यहां पे भेज दिया। तो ये कितनी बड़ी एक तपस्या, जो सारे यहाँ के लोग हैं, सोमा शेखरी जी जिनको महिला शिरोमणि का अवार्ड, जर्मनी की महिला हैं और इनको हिंदुस्तान में भरतनाट्यम सीखते हुए आज से 15-16 साल पहले महिला शिरोमणि अवार्ड मिला। और भारतीय कला को, भारतीय नृत्य को हिंदुस्तान में प्रमोट करने के लिए मेरे मित्र थे जगमोहन जी, अब नहीं रहे, शिरोमणि इंस्टीट्यूट चलाते थे वो दिल्ली में। इंटरनेशनल लेवल के उन्होंने अवार्ड एनआरआईज को भी दिए और बड़े उच्च कोटि का अवार्ड जो प्रेसिडेंट दिया करते थे, वाइस प्रेसिडेंट दिया करते थे, वो सोमा जी को और ओंकारानंद जी के कार्य को दिया। एक आदरणीय गोपालाचार्य जी की जो पंजाबी में पंक्तियां थी, वो इतना, मैं पंजाबी हूं तो मेरी जो माँ थी वो भी एक छोटा सा 2 लाइनें कहा करती थी। वो कहती थी कि बंदे दियां आशा कदे होंदियां ना पूरियां, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। कि जो आदमी है उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, वो तड़पता बहुत है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। तो कहते हैं कि बंदे दियां आशा कदे होंदियां ना पूरियां, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। ते स्कूटर वाला आखे रब्बा मेरे हेठा कार होवे, कार वाला आखे मेरा हवा विच उडार होवे। एक जो स्कूटर पे चल रहा है वो कहता है हे प्रभु मेरे पास कार हो, जो कार पे चल रहा है वो कहता है हे भगवान मैं आसमान में उड़ूं, मुझे तो एरोप्लेन चाहिए। तो स्कूटर वाला आखे रब्बा मेरे हेठा कार होवे, कार वाला आखे मेरा हवा विच उडार होवे। ओ तकदा जहाज नू ते वटदा ए घूरियां, बंदे दियां आशा कदे होंदियां ना पूरियां। जिस वेस्ट ने
यानी कि पश्चिमी सभ्यता ने, जिसको छोड़ के हमारे आदरणीय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, सोमा जी, छोटे स्वामी जी, सिद्धार्थ जी, ये उस अपनी जो ट्रेडिशन है उसका त्याग करके यहाँ पे आए, क्योंकि उनके लिए विश्व एक बाजार है। उनके लिए, अमेरिका के लिए या जो पश्चिमी सभ्यता है उसके लिए विश्व बाजार है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है इसमें विश्व एक परिवार है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सारे वसुधा एक परिवार की बात करता है। मेरे बाली से दोस्त आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आकू चिंता बाली, मैं गया था बाली, तो जब हम वहाँ पे जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ कुछ सीखने की कोशिश करते, तो उनसे मैंने पूछा भाई यहाँ पे क्या कहें, तो जैसे आई लव इंडिया, तो उन्होंने कहा आप बोलिए आकू चिंता बाली, आई लव बाली। तो जब मैंने वहाँ गया तो आकू चिंता बाली बोला तो लोग द्रवित हो जाते थे। और आप क्या विश्वास मानेंगे कि मैं 14 दिन रहा, 15 दिन रहा बाली में, और ये सज्जन यहाँ जमुनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित हैं, मिस्टर उडायन। 14 दिन में मैं इनको वहां नहीं मिल पाया, लेकिन 1 घंटे में ओंकारानंद आश्रम में मिल गया मैं इनको। 14 दिन बाली में रहा। जो वहां के एम्बेसी के जो हाई कमिश्नर थे वो इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कभी ये नहीं मिलते थे, कभी मेरी अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो लेकिन यहां पे 15 मिनट भी नहीं लगे और स्वामी जी ने इनको प्रकट कर दिया। तो आज मुझे बहुत गर्व है, मैंने 4 पूर्ण कुंभ अटेंड किए हैं स्वामी जी की कृपा से। अभी मैं अमरनाथ जी की यात्रा कवर करके आया। तो लोग कहते हैं एक ही कुंभ में स्नान से आदमी मुक्त हो जाता है, तो 4 कुंभ और 1 अमरनाथ यात्रा के बाद तो मैं अपने आप को आत्मा ही अब महसूस करता हूँ। अब शरीर तो समझ आता नहीं मुझे ज़्यादा। आज जो 20 साल 25 साल मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ, उसमें पहली बार मुझे ये मौका मिला कि मैं स्वामी जी की जयंती पे यहाँ आऊँ। और उसमें भी मैंने सैकड़ों आर्टिकल लिखे, हिंदुस्तान के बहुत से मशहूर अखबारों और मैगजीन्स के लिए लिखे। अब हिंदुइज्म टुडे के लिए 15 साल से लिख रहा हूँ। लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मेरे किसी आर्टिकल की कोई पुस्तक नहीं बनी थी, कोई किताब नहीं बनी थी, जो आज स्वामी जी ने मुझे ये बहुत बड़ा एक मुझे इज्जत बख्शी है। कि जो, और सच्चाई ये है कि स्वामी ओंकारानंद जी जो बोल रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कविता ही चल रही है। और इसको हु इज गुरु, और ये जो पुस्तक है इसको पढ़ने के बाद ये तो आदमी को परिवर्तित कर सकती है। और परिवर्तन का सूत्र या सूक्ति या युक्ति तो उन्होंने 3 लाइनों में ही दे दी है कि थिंक लाइक ए जीनियस, वर्क लाइक ए जायंट एंड लिव लाइक ए सेंट। सारी हिंदुस्तान के वेदों की फिलॉसफी इन 3 लाइनों में है। आप देख लीजिए कि आप थिंक लाइक ए जीनियस, जिसके कोई पैसे नहीं लगते, आप अपनी सोच, अपने मस्तिष्क का कितने बड़ा, कहते हैं हम लोग सिर्फ 2-4% ही यूज करते हैं अपने दिमाग का, तो आप सोचिए कि कितना पोटेंशियल है। तो स्वामी ओंकारानंद जी ने केवल 3 लाइनों में यह बता दिया कि जीवन जीने का क्या, और जीवन का निचोड़ क्या है कि थिंक लाइक ए जीनियस, वर्क लाइक ए जायंट, दैत्य की तरह काम करो, और लिव लाइक ए सेंट। अगर ये 3 बातें हिंदुस्तान अपना ले तो जो दिल्ली में हो रहा है वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उषा माता जी को भी मैं देख सकता हूं, जो आयंगर योग की इस टाइम विश्व में इनका नाम मशहूर है। और उषा जी ने कैसे योग के बलबूते पे इतने बड़े एक्सीडेंट से ये बच के निकली हैं, वो अपने आप में स्वामी
ओंकारानंद जी और योग की एक चमत्कार है, उससे कम नहीं है। अंत में मैं स्वामी ओंकारानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो कार्य, बड़ा कठिन कार्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने लिया हुआ है, इसको ये निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और आप, ये हॉल ऐसे ही भरा रहेगा और इनको आपका आशीर्वाद और सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। Kindly give a clapping hand. Thank you. You have to come again and again. Mr. I'm very thankful to Sri Rajiv Malik ji for his very, very inspiring words. I could also hear Gopalacharya ji, every word was excellently. Thank you very much. And we request you again and again to come here, bless each and everybody. Sir, I am a part of Onkarananda family. I am not as a journalist. Oh, yeah, that is true, that is true. But still you are living in Delhi, you know, that is the reason. So therefore I want you to come here. And you see, if we speak of journalist, there is a professional journalist. She looks always out, while she works with Outlook. She's the daughter of Sri Rajiv Malik ji, and she is a professional journalist. Now she works on this line here. We are also very happy to have you here. Okay? Thank you. Mr. Malik, thank you very much. Please, Honored. kindly. Thank you, Honored, sir. sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Really, madam. your speech was really well done. आपका नाम कोयल है तो आपकी आवाज भी कोयल वाली है। That's your humility, sir, being modest.